A very good morning to all student. Once again we are coming to introduce a new topic of class 12 business studies. As you know very well, in the last few videos we discussed the last chapter of part B, that is a consumer protection. As you know very well, in the last few videos, the videos from the March to the videos up to the 31st July, you can see that we completed the whole syllabus of business studies, as well as you can see that your business studies syllabus can be divided into the two part, that is a part A and part B. The part A is consist of the 8 chapter, in which you can see that the first chapter are related to the nature and significance of the management. Second chapter is related to the principle of management. Chapter 3 is related to the business environment, and thereafter chapter number 4, 5, 6, 7 and 8, which are classified into the 5 basic function of the management, that is a planning, organizing, staffing, directing and controlling. Thereafter we will move to the part B. You can see that in the part B we studied the basically 4 chapter. In this you can see that the first chapter of part B are related to the financial management. Second chapter is related to the financial market. Third chapter which are related to the marketing as well as the marketing management, and number 4 chapter of part B, that is a consumer protection. So you can see that your business studies syllabus covered all the 12 chapters, in which 8 chapter is from part A and 4 chapter is from part B. So you can see that we completed all the chapters, that is from the chapter number 1 to the chapter number 12, and we can take a various knowledge, various theoretical aspect as well as the practical approach from these chapters. So after completing the whole syllabus, now we will move to the some of the practical questions, especially in which they include the multiple choice question, which are related to which are the part of the objective type of the question. You can see that you know very well, in the last amendment by the CBSE in your syllabus is that the CBSE will reduce the 30% of your total syllabus for the session 2020 and 21, as well as the second very important which are applicable, the changes which are applicable from the last year, that is 2019 to 20, is that every question paper which are related to the business studies, in which 20 क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन. इट मीन्स कि आपका जो पूरा पेपर आएगा उसमें 20 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे. और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कई तरह के होते हैं, जैसे उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं, एज वेल एज सर्टेन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड पैसेज को स्टडी करने के बाद, यू नो वेरी वेल, इंग्लिश में हम लोग पैसेज स्टडी करते हैं, उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनके आंसर देते हैं, as well as any other types of the objective type question, that is a match the columns. So you can see that a lots of objective types question asked in the examination. So one by one I will complete all the MCQ questions from the chapter number 11 and chapter number 2 to chapter number 12. So in today's video we will study the MCQ question, इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12. तो आज के इस वीडियो में हम लोग MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ये सारे MCQ क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ अ मार्केटिंग और चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है. ऐसे हम दो चैप्टर्स के ग्रुप बनाएंगे और टोटल 6 चैप्टर्स, लास्ट 6 वीडियोज़ में हम लोग MCQ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का सबसे पॉपुलर फॉर्म होता है दैट इज़ MCQ क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड दीज आर द important MCQ question. So let's we discuss all the MCQ question which are related to chapter number 11, that is a marketing, and chapter number 12, that is a consumer protection. So let's we start the today's session, today's class. That is, you can see that on your screen, multiple choice question, 1 marks. The question number 1, which of the following function of marketing helps in product more attracting
एंड इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। जब भी आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व करें, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट कि प्लीज़ रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कौन सा फंक्शन है मार्केटिंग का जो कि प्रोडक्ट को ज़्यादा अट्रैक्टिव और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ऑप्शन आज मार्केटिंग प्लानिंग, number second is product designing and development, number C is branding, and number D is a promotion. So what is the correct answer? The correct answer of this question is product designing and development, because product की अगर डिज़ाइनिंग अच्छी होती है सो उससे प्रोडक्ट अट्रैक्ट होता है, और अगर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, which helps to make a product more attractive and improving its performance. Number second question is, it is a process of planning, organizing, directing and controlling the activity related to the exchange of goods and services. यानी गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए हम क्या काम करें, कैसे प्लान करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, डायरेक्ट करें, कंट्रोलिंग करें, ये सब कुछ किस मैनेजमेंट का पार्ट है। सो ये किस मैनेजमेंट का पार्ट है? मार्केटिंग मैनेजमेंट, इट इज़ अ सेल्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यू कैन सी दैट अभी हम लोग रिसेंटली कौन सा चैप्टर की बात कर रहे थे? मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ relating to the exchange of goods and services. So right answer is option A, marketing management. Now we will move to the third question. Name the philosophy of marketing which is an extension of marketing concept. आपको ये बताना है कि philosophy कौन सी है जो कि marketing concept का extension है। अब आपको मैं 1 by 1 सारे marketing concepts को revise भी करा देता हूँ। So what is product concept? You know very well. Product concept focus on the quality of the product. Societal marketing concept क्या कहता है कि we focus on the satisfaction of the consumer as well as we are taking the some responsibility of the society. It means every businessman have a first aim to satisfy your customer as well as every businessman has a responsibility to take the social cost. It means आपको सोसाइटी से जो भी रिसोर्सेज ले रहे हो उसको वेरी केयरफुली यूज़ करो, और यूज़ करने के बाद उन सारे प्रोडक्ट्स को उससे आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करो, यानी सोसाइटी को हार्म किए बिना आप अपने प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करो, प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोड्यूस करो। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इस बात पे बिलीव रखता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोडक्ट, एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट कि हमें गुड्स को सेल करना है एट एनी कॉस्ट। सो फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग विच इज एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का कौन सा एक्सटेंशन है? मीन्स आपने पहले क्या देखा था? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर क्या था? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर क्या था? सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिर क्या था? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फिर क्या था? सोसाइटिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अगर एक्सटेंशन पार्ट को देखें तो विच आर द सोसाइटिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नंबर 4 इज इसके लिए हिंट भी दिया हुआ है। द सोसाइटिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एज सप्लीमेंट बाई द कंसर्न फॉर द लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। Apart from the customer satisfaction, it pay attention to the social, ethical and ecological aspect of the marketing. यानी आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ मार्केटिंग के सोशल वेलफेयर पे, एथिकल कंटेंट पे और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी फोकस करना चाहिए। सो दिस इज अ सोसाइटिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड विच आर द एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। Number 4 is which of the following is a function of marketing? आपको ये बताना है कि मार्केटिंग के कौन से इसमें से फंक्शन है। द ऑप्शन इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, यस करेक्ट, ये भी फंक्शन है मार्केटिंग का। एंड मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट से रिलेटेड प्लान करना। स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग, यस इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द function of the marketing. So we can say that all the above, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, all the
functions is a part of the marketing. So the right answer is all the above. Number fifth, question number fifth, marketing plays a very important role in the economy. मार्केटिंग का इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रोल है. कैसे? रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, यस. इंश्योरिंग स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स थ्रू एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यस. नंबर सी, accelerating economic activity, and number D is all the above. So we can see that you can know very well कि मार्केटिंग का इकोनॉमी में हर तरह से रोल होता है. वो हमारे देश के जितने भी पीपल हैं, जो भी पॉपुलेशंस हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करता है. जो फ्लो ऑफ गुड्स है, यानी फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द कंज्यूमर ईजिली स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स मेंटेन करता है. मार्केटिंग के हेल्प से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक्सेलरेट होती है और फास्ट होती है. सो वी कैन से दैट मार्केटिंग प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी. If you are talking about the hint, so you can see that marketing acts as a catalyst in economic development of country and helps in rising living of standard of people. Catalyst in economic development helps in raising living standard of the people. It helps in ensuring smooth flow of goods through the efficient distribution system. It helps to establish linkage between the business, accelerating economic activity, leading to higher income. So ये पैरा आपको याद होगा when we discussed the chapter number 11, that is of marketing. So मैंने आपको बताया था कि what are the role of marketing in our economy. सिर्फ इकोनॉमी के लिए उसका रोल नहीं होता, as well as economic plays marketing plays a very significant role in the consumer point of view. So let's we move to the next question. The next question is question number 6. ... refers to important decisions related to the product such as quality, design, branding, product packaging, labeling, etc. आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा डिसीजन, यू नो वेरी वेल मार्केटिंग मिक्स, दे आर बेसिकली 4 मार्केटिंग मिक्स: प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. दे आर बेसिकली 4 मिक्स ऑफ मार्केटिंग. सो आपको ये बताना है कि 4 पिलर ऑफ द मार्केटिंग में, 4 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स में, इसमें कौन सी क्वालिटी जो है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स किस मार्केटिंग मिक्स से रिलेट करता है. द ऑप्शन इज मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स एंड मार्केटिंग. सो इसमें तो मार्केटिंग मिक्स और मार्केटिंग वैसे ही हट गया. अब हम लोग बात करते हैं प्रमोशन मिक्स. तो प्रमोशन मिक्स में हम प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट के पर्सनल सेलिंग पे फोकस करते हैं. अब प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिज़ाइन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग किससे डिपेंड करता है, दैट इज़ प्रोडक्ट मिक्स. सो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, दैट इज़ प्रोडक्ट मिक्स. सो यू कैन सी दैट इफ़ यू हैव अ सफिशिएंट नॉलेज अबाउट दी कंटेंट, अगर आपको कंटेंट का प्रॉपर नॉलेज है, यू हैव अ सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द कंटेंट, सो यू कैन ईजली गिव द आंसर ऑफ MCQ. आप MCQ क्वेश्चन की आंसर ईजली पे कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो. द नेक्स्ट इज नंबर 7. Which of the following refers to that process of assigning a distinctive name or a symbol to a product by which can be known, remembered and identified. देखिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को एक डिस्टिंक्टिव नेम, यानी कि कुछ अलग नेम देते हैं, दूसरों से अलग बनाते हैं, या उसको कोई सैम्पल देते हैं जिससे हम उसे जान सके, याद कर सके और पहचान सके. इज दैट क्लियर? सो आपको बताना है ट्रेडमार्क, प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग. अब देखिए, ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क इज द सेम थिंग्स. ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, बट यहाँ पर मैक्सिमम चांस जो है वो सही आंसर है, वो ब्रांडिंग है. बिकॉज ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग जो होता है वो प्रोसेस है, ट्रेडमार्क जो है एक मार्क है. सो ब्रांड मार्क एक अलग चीज़ है. ट्रेडमार्क क्या होता है, जब ब्रांड मार्क का हम गवर्नमेंट से क्या ले लेते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं कि ओनली मी यूज सच टाइप ऑफ मार्क इन आवर प्रोडक्ट, और कोई दूसरा में विदाउट माई परमिशन एंड नो वन कैन यूज सच मार्क इन हिज प्रोडक्ट. सो बेसिकली अगर हम डिस्कशन ये करें कि ट्रेडमार्क एंड ब्रांड मार्क जो दोनों है वो प्रोसेस नहीं है, वो एक मार्क है. ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस. तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा ऐसा प्रोसेस है. सो वी कैन ईजिली गिव द आंसर, दैट इज अ ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस which assign a distinctive name or symbol to a product by which it can be, means product can be known, remembered and identified.
The next question is, which of the following does not come under the category of non controllable factor? non controllable factor मतलब किस फैक्टर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें से जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? दैट इज नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। डज नॉट कम अंडर, ये भी याद रखिए, डज नॉट कम मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन नॉन कंट्रोलेबल है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंपटीशन का लेवल हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बैंक ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करें। सो पैकेजिंग जो है वो कंट्रोलेबल फैक्टर होता है, यानी वो नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर के कैटेगरी में नहीं आता। क्वेश्चन में देखिए पूछा है डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। इसमें से कौन सा फैक्टर नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर में नहीं आता? इट मीन्स कंट्रोलेबल फैक्टर में आता है। सो द राइट आंसर इज पैकेजिंग। पैकेजिंग इज द राइट आंसर। ओके, नंबर 9 इज पैकेजिंग हेल्प्स इन द मार्केटर्स इन। पैकेजिंग क्या करती है, क्या ऑप्शन आपको क्या हेल्प करती है? रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, यस राइट आंसर। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, यस। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यस। सो वी कैन से दैट packaging helps the marketing in all the above way, that is raising standard of health and sanitation, innovational opportunities, and with the help of packaging we can easily differentiate among the products. So इसके लिए कुछ हिंट भी आपके सामने प्रेजेंट है। that is packaging raises the standard of health and sanitation by preventing adulteration. Okay, packaging has extended the scope of marketing product like dairy for items. It also helps to create differentiation on the basis of different color, size and etc of the packages. So you can see that अगर हम पैकेजिंग की हेल्प करते हैं तो उससे हमारे हेल्थ का स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है और हम सैनिटेशन मेंटेन, सैनिटेशन मतलब हम एडल्ट्रेशन रोकते हैं। अगर आप पैक्ड फूड यूज़ करोगे तो उसमें कोई पैक्ड फूड पैक्ड को काट के मिलावट नहीं कर सकता है। खुले सामानों में मिलावट हो सकती है बट बंद सामानों में मिलावट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि उससे पैकेजिंग ब्रोक हो जाएगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस पैकेट को कि पैकेजिंग के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुआ है। ओके, और विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग यू नो वेरी वेल कि हम विद पैकेजिंग की हेल्प से प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन भी क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, साइज एंड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग भी हम पैकेजिंग में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है। यू कैन सी दैट इनोवेशन मतलब हम नए तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पैकेजिंग एक अच्छा तरीका है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को एक अलग तरीके से मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 is which of the following refers to the process of designing a small slip or complex graphic that are the part of the package which denote its nature, contain and uses. It is a very easy question. इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर में हम एक स्मॉल स्लिप डिज़ाइन करते हैं या फिर प्रोडक्ट के पैकेज पे ही कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्मॉल स्लिप को डिज़ाइन करते हैं और पैकेज के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये बताता है कि उस प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कंटेंट क्या है, यूजेस क्या है। सो यू कैन नो वेरी वेल इट इज़ ब्रांडिंग, नो। इट इज़ अ लेबलिंग, यस। इट इज़ पैकेजिंग, नो। पैकेजिंग के ऊपर ही तो हम लोग लेबलिंग करते हैं। सो पैकेजिंग के ऊपर अगर हम कोई भी ग्राफिक्स यूज़ करते हैं या फिर हम स्मॉल स्लिप उस पर पेस्ट कर देते हैं जिससे हमें उस प्रोडक्ट के नेचर, उसके कंटेंट और उसके यूज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है। सो दिस इज़ नोन एज द लेबलिंग। सो लेबलिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी कैन डिज़ाइन अ स्मॉल स्लिप और डेवलप अ कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स ऑन पैकेजिंग which denotes the nature, content and uses of the product. Okay, so now we will move to the next question, that is question number 11. The next question is question number 11. Which function of channel of distribution refers to the process creating desired combination of product to fulfill varied needs of customers such as a cricket kit? You know very well, there are basically few steps of the process of channel of distribution जिसकी हेल्प से हम
कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग गुड्स को क्या करते हैं, उसके कॉम्बिनेशन को क्रिएट करते हैं। दैट इज़ अ शॉर्टिंग, एक्यूमुलेशन, एलोकेशन एंड असॉर्टिंग। शॉर्टिंग मतलब प्रोडक्ट को छोटे छोटे बड़े बड़े लॉट्स में शॉर्ट करना। एक्यूमुलेट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फैसिलिटेट करना। एलोकेशन मतलब डिमांड ऑफ द कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ईजिली एलोकेट करना। एंड असॉर्टिंग मतलब जो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिज़ायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट टू फुलफिल वेराइड नीड्स ऑफ कस्टमर। यानी कि यू नो वेरी वेल कस्टमर की जो नीड है वो डिफरेंट चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उन नीड के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। जैसे कि क्रिकेट किट में यू नो वेरी वेल ऑल द थिंग्स आर असॉर्टेड लाइक अ क्रिकेट बैट, विकेट, बॉल, पैड्स. So you can see that this is a process of assorting. So assorting refers to the process of combining various goods for the same line of the product for sale to consumer. यानी assorting एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कई सारे गुड्स को एक टॉपिक में, एक में प्रोसेस में, एक प्रोडक्ट में क्या कर देते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। जैसे कि क्रिकेट किट देख लो, कंप्यूटर सेट देख लो जिसमें मॉनिटर होगा, अगर डेस्कटॉप में देख लो मॉनिटर होगा, CPU होगा, UPS होगा, सो माउस होगा, प्रिंटर होगा। सो दिस आर द नीड्स इन द असॉर्टिंग। यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको साथ में मिलाकर कंपाइल कर लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 इज if the management of a company wants to exercise highest level of control over the distribution of its product, which of the following channel of distribution would be preferred by it? यानी ये कह रहा है कि अगर कंपनी का मैनेजमेंट ये चाहता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उस पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल हो, तो सिचुएशन में उसे कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर करना चाहिए। अगर हम 1 लेवल की बात करें तो वहाँ पर होलसेलर और कस्टमर के बीच में, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में डिफरेंट रिटेलर्स होते हैं। 2 लेवल्स में यू कैन सी दैट मैन्युफैक्चरर और सेलर के पास, कंज्यूमर के बीच में होलसेल एंड रिटेलर होते हैं। 3 लेवल ऑफ चैनल में मैन्युफैक्चरर के बाद आता है एजेंट्स के बाद होलसेलर के बाद रिटेलर। सो जितना ज़्यादा लंबा लेवल ऑफ चैनल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल जितना बड़ा होगा, उतना ही मैनेजमेंट का कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट कम होता जाएगा। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन, so we can always prefer the 0 level channel. So the right answer is 0 level channel. The next is question number 13. Which of the following should not be performed by the channel of distribution of goods? आपको ये बताना है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, यानी गुड्स का जब हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं करते। जैसे शॉर्टिंग, येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Assorting, yes, is the part of the channel of distribution. If we are talking about the quality improvement, तो quality improvement is a part of product mix. It is not a part of place mix. You know very well 4 mix होते हैं, 4 element of the marketing: price mix, product mix, place mix and promotion mix. Channel of distribution is a part of place mix. So quality improvement जो है it is a part of the product mix, क्योंकि प्रोडक्ट में ही प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग सब पे फोकस करते हैं। अगर हम बात करें क्वालिटी रिस्क टेकिंग में, तो यस इज इट अ पार्ट ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी कैन सी दैट क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 14, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज़ रीड केयरफुली। सैमसंग इज़ अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अक्रॉस द ग्लोब। सैमसंग जो है वो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेल करने के लिए लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। इट इज़ अ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ हाई एंड स्मार्ट TV इज इन एशियन मार्केट एंड इट्स एंटिसिपेटिंग मॉडरेट डिमांड फॉर इट। बेस्ड ऑन दीज एजम्पशन इट फिक्स द TV's प्राइस at the rate of $1,500 per TV. Which of the following factors affected the price of the TV? आपको ये पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, जैसे आप देख रहे हो सैमसंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को ग्लोबल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रही है। अब वो चाहती है कि एशियन मार्केट में उसके प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो। उस सारी चीज़ों को देखकर अगर वो प्रोडक्ट की जो प्राइस है उस बात पे डिपेंड करती है कि
जो प्राइस है टीवी का वो 1500 रुपये पर टीवी, $1500 पर टीवी वो डिसाइड करती है। आपको ये बताना है टीवी के प्राइस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टेड द प्राइस ऑफ द टीवी? इट इज़ वेरी क्लियरली 14, दैट इज़ अ यूटिलिटी एंड डिमांड, प्रोडक्ट कॉस्ट, एक्सटेंशन ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट एंड नन ऑफ दी। आपको इस पूरे पैराग्राफ में देखो तो प्रोडक्ट की प्राइस कितनी डिसाइड की है? 1500 रुपीज़ पर टीवी। ओके, और कंपनी एंटिसिपेट कर रही है कि उसका मार्केट में डिमांड कैसा हो? मॉडरेट डिमांड। तो यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइस रखी गई है उस पर कॉस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कंपटीशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इस यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा द यूटिलिटी एंड डिमांड, यानी कि अगर प्रोडक्ट का यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो उसकी प्राइस भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अगर यूटिलिटी डिमांड कम होगी तो उस प्रोडक्ट की प्राइस भी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ वी कैन सी दैट कि यहाँ प्रोडक्ट की यूटिलिटी और डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड मॉडरेट रखनी है, ठीक है, तो वो डिमांड पे फोकस कर रहा है और यूटिलिटी पे फोकस कर रहा है। यहाँ क्योंकि यूटिलिटी मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? हाई एंड स्मार्ट टीवी है, तो ये यूटिलिटी को डिनोट कर रहा है और एंटिसिपेटिंग मॉडरेट डिमांड को मॉडरेट। यहाँ कहीं कॉस्ट कंपटीशन लेवल की बात नहीं हो रही है। सो अगर हम पूरे पैराग्राफ को स्टडी करें तो वी कैन फाइंड इट कि यूटिलिटी एंड डिमांड इज़ अ फैक्टर विच अफेक्ट द प्राइस ऑफ द टीवी, जिसमें हम प्राइस का टीवी डिसाइड करते वक्त हम कौन से फैक्टर को ध्यान में रख रहे हैं? उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी और उस प्रोडक्ट की डिमांड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द फर्स्ट, zero channel goods are directly made available to consumer for manufacture. Yes, it is a right statement. In one level channel of goods are made available from manufacturer to retailer then to customer. कह रहा है वन लेवल में गुड्स जो होता है मैन्युफैक्चर रिटेलर को देता है, रिटेलर से कस्टमर के पास जाता है। यस, इट इज़ अ गुड। इन टू लेवल चैनल गुड्स आर मेड अवेलेबल फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू एजेंट्स एंड देन टू रिटेलर। ये गलत है। यू नो वेरी वेल द राइट क्या है? जीरो लेवल में मैन्युफैक्चर डायरेक्टली किसको देता है? कंज्यूमर को। इन वन लेवल ऑफ चैनल मैन्युफैक्चर किसको देता है? रिटेलर्स को, और रिटेलर किसको देते हैं? कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड करते हैं। इन टू लेवल ऑफ चैनल में जो मैन्युफैक्चर है वो पहले होलसेलर को गुड्स देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और रिटेलर किसको देता है? कंज्यूमर को। सो यू कैन सी दैट टू लेवल ऑफ चैनल में एजेंट्स की बात ही नहीं होती। एजेंट्स की नाम कब होती है? इन द थ्री लेवल ऑफ चैनल। सो द स्टेटमेंट नंबर 3 आर इनकरेक्ट। सो द राइट आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 3 बिकॉज स्टेटमेंट नंबर A एंड स्टेटमेंट नंबर B आर करेक्ट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. Mr. Raj wants to buy a LCD for his family. When he visited Anand Electronic to make the purchase, he got confused. Which promotional tool brought him to the shop and which promotional tool is required now to remove his confusion? आपको ये बताना है कि मिस्टर राज ने LCD खरीदना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए। जब वो आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स में परचेज किया तो वो कंफ्यूज हो गए। Which promotional tool brought him to the shop and which promotional tool is required now to remove his confusion? यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सा प्रमोशनल टूल उन्हें शॉप तक लेकर गया और कौन से प्रमोशनल टूल से वो अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। पहली चीज़, LCD टीवी खरीदना चाहते थे, वो आनंद इलेक्ट्रॉनिक पे गए। सो यहाँ पर क्या चीज़ है? एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि आपको पहले फर्स्ट पार्ट को क्लियर करना है कि विच प्रमोशनल टूल इज़ रिक्वायर्ड, विच प्रमोशनल टूल ब्रॉट हिम टू द शॉप। उस शॉप पर ही क्यों गए? आनंद इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे क्यों गए? बिकॉज ड्यू टू द एडवर्टाइजमेंट, ड्यू टू द पर्सनल सेलिंग, ड्यू टू द सेल्स प्रमोट, ड्यू टू द पब्लिक रिलेशन। अब आप बताओ यहाँ कोई पर्सनल सेलिंग हुई थी क्या? उनके पास कोई पर्सनल सेलर आया था, कहा था कि प्लीज़ परचेज दिस गुड्स? नो सर। क्या इस कंडीशन में कोई सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज़ की गई? नहीं। पब्लिक रिलेशन हुआ? नो।
So the right answer is advertisement. So due to the advertisement he can go to the TV. और वो अपना confusion कैसे दूर कर सकते हैं? How he can remove his confusion? Through the personal selling. So the personal selling के थ्रू, यानी जो वहाँ पे शॉपकीपर होगा, जो सेल्समैन है, उसके थ्रू वो अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं कि वो कौन सी टीवी परचेस करें, किस कंपनी की खरीदें, किस रेंज में खरीदें, ताकि उनका काम हो जाए. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट Mr. Raj brought him to the shop, that is Anand Electronics, as well as with the help of personal selling he remove his confusion, because he got confused to make a purchase a LCD for his family. So you can see that today we solve various important MCQ question related to the chapter number 11, that is a marketing. In the next video we will come to the more and more MCQ question related to the chapter number 11 and the chapter number 12. So I hope today we cleared all the topics very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.